Hello, this is Push English. Good evening, children. And in MCQ series for class 12th, I'll be discussing the chapter Lost Spring. As I promised that I'll be uploading one more video. So to begin with, you already know, children, that there are two chapters in this, two sub stories in this stories of stolen childhood. One is about a boy who is a rag picker, Sahib, and the second one is about a bangle maker, Mukesh, so who wants to be a motor mechanic. So let us see, and those children who have yet not understood the chapter, please go to the channel Push English, check the playlist and see line to line explanation. So let us begin, children, without wasting much of time. So this is, in today's video I'm going to discuss some MCQs, and then after discussing 10 MCQs I'll be also discussing some extract based MCQs, which is also called RTC, reference to context, that too in MCQ form. And after discussing this 2 to 3 RTCs, if you want me to discuss anything else, okay, but this is my plan today, and let's go ahead. So to begin with, it's the Lost Spring and the first sub story, which is about Sahib-e-Alam. So let's get started. So this is question number 1, children. Just pay attention and try to listen to me carefully, because what is most important is analyzing each and every bit of a question. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं. So what is the central theme of the story? Lost Spring. Lost Spring. They are asking with reference to both the stories. Okay, ये हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ साहिब की या सिर्फ मुकेश की बात हम नहीं कर रहे हैं. We are also talking about both the stories. Okay, we are talking about both of them. So अगर सेंट्रल थीम की बात करें, और आपने अगर मेरा माइंड मैप देखा हो, मेरे इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं लॉस्ट स्प्रिंग पर, तो सेंट्रल थीम मैंने पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया है उसमें. और उसमें हम बात कर रहे हैं ज़रूर गोल्ड इन द गार्बेज, लेकिन ये गोल्ड इन द गार्बेज को ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट स्टोरी को टच कर रहा है, यानी साहिब को. डिलेड स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग की बात तो ज़रूर कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज भी होंगे स्प्रिंग वर्ड देख करके, बट वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग सीजन. वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड विच इज़ symbolized as spring, or the spring which is symbolic of the fact that the childhood has been lost. Okay, अब आते हैं साहिब और मुकेश. तो भाई ये सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, थीम तो है नहीं, वरना ये सही होता. अगर यहाँ पर आप एक वर्ड चेंज हो जाता सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, तो ये पक्का करेक्ट होता, लेकिन ये भी गलत हो गया. तो देखिए, 3 गलत अगर आपने निकाल लिए तो आपके पास करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली आ गया. एंड द सेंट्रल थीम इज pitiable poor children and their lost childhood. So we are talking about those children who are very poor, who are suffering the life because of grinding poverty, and they have lost their childhood. So we have talked about deplorable condition of poor children who are forced to miss their childhood, their joyful moment, their cheerful moments of childhood because of their socio-economic conditions. They are forced to work. One of them is forced to work as a rag picker, other one is forced to work as a bangle maker, despite the fact that he wants to become a motor mechanic. तो सेट ऑप्शन ए बहुत इजी था, लेकिन इतना इसलिए डिस्कस करना पड़ा कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए. What forces the children to live a life of exploitation? अब इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चों को मजबूर करती है कि वो ऐसी एक्सप्लॉयटेड लाइफ जीते हैं? अब देखो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आप एक गो में देखोगे तो सब कुछ ऐसा लगेगा कभी कभी कि एवरी फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे तो हर फोर्स एक पल को लग रहा होगा कि सही है, लेकिन हमें परफेक्ट आंसर तक पहुँचना है. और चूँकि ये स्टोरी में हमने एक तरफ रैग पिकर की बात की है और दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर, जो ग्लास फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बैंगल मेकर्स, उनकी बात की है, तो ये दोनों ही केसेस में बच्चे क्यों एक्सप्लॉयट हुए हैं? क्योंकि ना गरीबी इतनी ज़्यादा होती, ना वो एक्सप्लॉयट होते, ना वो फोर्स होते टू वर्क इन दीज काइंड ऑफ फैक्ट्रीज, और यू कैन से दी रैग पिकिंग.
सो ग्रीड, लालच तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो लालच को हमने ड्रॉप किया, ग्रीड को। एक्सट्रीम पॉवर्टी, यस। पेरेंट्स, पेरेंट्स में तो देखो कोई भी पेरेंट्स चाहते नहीं हैं कि उनके बच्चे काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि माँ बाप भी शायद मजबूर हो जाते होंगे अपने बच्चों को काम कराने में। पीयर्स भी बिल्कुल नहीं, आपके फ्रेंड्स, आपके जो आपकी एज के लोग हैं वो बिल्कुल नहीं आपको कंपेल करते। सो द ओनली आंसर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी, दैट इज बी। ओके, कमिंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर ने जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा है? पहले तो क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छे से समझना है। हम जब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने की है तो उसमें मैंने आपको कई बार ये बताया है कि गार्बेज जो है फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बच्चों के लिए वो क्या है? समथिंग विच इज़ वेरी वंडरस, समथिंग विच इज़ रैप्ड इन वंडर, समथिंग विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम। क्योंकि बच्चों के लिए वो एक गेम की तरह है। दे कैन फाइंड अ कॉइन एंड इफ दे have a hope of finding it more, they keep on scrounging that garbage which is like a gold। तो यहाँ पर हमने garbage को gold कहा ज़रूर है सिम्बॉलिकली, इसलिए नहीं बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, क्योंकि कूड़ेदान में ऑब्वियसली जेवर तो नहीं होते, जेम्स भी नहीं होते, तो ये तो दोनों हम तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। और सच पूछे तो कूड़े में कोई सोना भी नहीं फेंकता, गलती से कभी गिर जाए तो अलग बात है, ये भी गलत हो गया। तो क्या? बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। अब इसको समझना पड़ेगा बच्चों, हो सकता है आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद एक तरफ तो क्लियर हो गई कि डी करेक्ट आंसर हो सकता है। अब इसको हम करते हैं एनालाइज। इनकैशमेंट वैल्यू की यहाँ बात इसलिए की गई है क्योंकि जैसे गोल्ड बहुत ही वैल्यूएबल है, प्रीशियस है, इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही गार्बेज इन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज़ को। व्हाट इज़ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज? अब टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग क्या सिम्बलाइज करता है? अभी हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन उठाया था, सेंट्रल थीम था, लेकिन वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइटल की। तो ऑब्वियसली लॉस्ट मनी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको ड्रॉप कर देंगे। हम ऑप्शंस को देखते ही पहले ड्रॉप करने की, लेकिन 2 बार क्वेश्चन ज़रूर पड़ेगा। टाइटल की बात हो रही है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग सीजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस्ट मनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस्ट एज। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम एक ऐसी खोए हुए लॉस्ट चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं जो ब्लूम करता, यानी कि ब्लूमिंग चाइल्डहुड, है ना? तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों की, चाहे वो साहिब हो, चाहे मुकेश या उसके ही जैसे बहुत सारे बच्चे, उन्हें स्कूलिंग का मौका नहीं मिलता, उन्हें बहुत ही अर्ली लाइफ में दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन अर्ली लाइफ, अर्ली इन देयर लाइफ। और इस स्पेशली इस चैप्टर से हमें एक इंसाइट मिलता है, एक अंदर हम ये समझ पाते हैं कि एक चाइल्ड किस लेवल तक एक्सप्लॉइट होता है और क्यों होता है कि जिस उम्र में उन्हें स्प्रिंग यानी कि उनके चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहिए, उस एज में वो काम करते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर? तो कौन से एफर्ट्स ऐसे हैं मुकेश के जो ऐसा लगता है कि वो जो कार ड्राइवर या मोटर मैकेनिक, आपको लगता है मैं तो यहाँ कहूँगी कि कार ड्राइवर वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए, है ना? यहाँ क्या करना चाहिए था? वर्ड यूज़ बताएं आप सब कमेंट बॉक्स में डाल करके, ठीक है? और मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने बच्चे इस चीज़ को करेक्टली आंसर कर पाते हैं। दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर वर्ड। सो व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज? आपको पता है वो बैंगल मेकर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता, कुछ और बनना चाहता है, तो उसकी इन चारों में से कौन सी चीज़ उसकी हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन क्या मेहनत से सिर्फ अचीव कर सकते हैं आप? उसके बाद से गोइंग टू गराज जाना, सिर्फ गराज जा कर के भी वो नहीं बन सकता। ओके, क्या नहीं बन सकता? फिर मैं आपको याद दिला दूं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रा, मैं भी देखना चाहती हूँ आप मेरे वीडियोस को कितना ध्यान से देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ कार ड्राइवर? प्लीज़ डू पुट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर। अब इसके जो ओनर हैं उनका तो कोई लेना देना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको भी हम ड्रॉप करते हैं। अब आते हैं ऑल ऑफ दीज। तो जब ऑब्वियसली
सिर्फ ओनर के गाइडेंस से। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गहरी बात लिखी गई है, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये। अगर मैं पेपर सेटर होती तो ये क्वेश्चन पहले तो यहाँ क्लियर करती, यहाँ वो करेक्ट वर्ड यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद से मैं ये क्लियर करती कि भाई मुकेश अगर साहेब है तो साहेब का तो एक ओनर है, उस टी स्टॉल ओनर, तो समझ में आता है। तो ये शायद दिया ही इसलिए गया है कुछ कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल ऑफ दिस इस चक्कर में कहा गया है क्योंकि ये जो भी गराज का ओनर होगा शायद उसकी बात कही गई है। तो थोड़ा अजीब व गरीब क्वेश्चन है, बट वी विल गो विद डी। वाई? आई टेल यू, बिकॉज जो उसका सपना है बनने का, उसके लिए मेहनत भी चाहिए, गराज भी जाना पड़ेगा और उसके गराज ओनर की गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि चैप्टर में बिल्कुल मेंशन नहीं है। तो यही है बच्चों असर्शन और रीजनिंग। समटाइम्स सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड आउट ऑफ द बॉक्स, जहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके इसलिए ऑल ऑफ दीज है। बट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। व्हाट कंपेल्स दी वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? इनमें से कौन सी चीज़ उनको कंपेल करती है? आपको पता होगा फिर बैंगल मेकर्स जो हैं फिरोज़ाबाद में वो इस अपने एंसेस्ट्रल प्रोफेशन को, इस गॉड गिवन लिनेज को बहुत ही प्राइड के साथ कैरी करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिलीव करते हैं कर्मा की थ्योरी पर, और उनका ये मानना है कि ये पॉवर्टी उनकी डेस्टिनी है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब चीज़ ये है कि मिडिल मैन जो एजेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, साहूकार्स होते हैं, ये इनको तो एक्सप्लॉइट करते हैं और ख़ुद फ्लरिश होते हैं, बट इनको कभी फ्लरिश होने नहीं देते। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री टू पॉवर्टी? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। बच्चों इसमें मिस्टेक बताना क्या है, क्या मिस्टेक होगी मुझे बता सकता है कोई? स्पेलिंग, ओके ओके। तो क्या कर्म थ्योरी और सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड ऑल ऑफ दिस। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम इनमें से तीनों को अगर लें, ए बी सी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आ रहा है तो हमें तीनों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो टू सम एक्सटेंट तीनों थोड़ा थोड़ा करेक्ट है भाई। ना वो अपने इस एंसेस्ट्रल कास्ट होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, ना वो ऐसे कास्ट में पैदा हुए होते, ना उनका एंसेस्ट्रल प्रोफेशन वो कैरी आउट करते। तो कुछ हद तक ये एक लिमिट तक है, तो इस पर थोड़ा सा टिक लगाएंगे। कर्मा थ्योरी, दे बिलीव इन कर्म, दे आपको याद होगा मुकेश की दादी क्या कहती हैं, दिस इज़ हिज कर्म, ठीक है, ये उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। तो कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी ये भी कुछ हद तक करेक्ट है, ओके। एक मिनट बच्चों, जस्ट वेट, I don't know, something has gone wrong, this is not working। हाँ, so इसको भी कुछ हद तक हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें, जस्ट वेट, ओके चलो इसको छोड़ देते हैं, मतलब बी को। और अब आते हैं सी पर। यस, सी को भी हम कैसे कंसिडर करें? ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस ये भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। तो अगर देखा जाए बच्चों तो ये तीनों में ही, ये तीनों के तीनों में थोड़ा थोड़ा पार्शियली ये करेक्ट है ना। तो इसको हम, आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस, एनीवे। तो खैर इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ओके, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और बट promises like mind abound in every corner of his bleak world। आई होप आप चैप्टर पहचान रहे हैं। So but promises like mine abound in every corner of his bleak world, this suggests that, क्या suggest करते हैं वो, there is no dearth of promises which remain unfulfilled, there is scarcity of people promising things for betterment, or people make a lot of promises which are often fulfilled, promises made live up to the expectation। तो बेटा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा भी चारों थोड़ा थोड़ा करेक्ट हैं। अब एनालाइज करना शुरू करते हैं, इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट, ये फ्रेज क्या सजेस्ट कर रहा है? ये स्टेटमेंट विच इज़ स्पोकन बाय अनीस जंग हरसेल्फ, कि मेरे जैसे प्रॉमिस, जैसे मैंने प्रॉमिस की है साहिब से, उनके इस ब्लीक वर्ल्ड में, यानी साहिब के ब्लीक वर्ल्ड में, दे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, हर नुक और कॉर्नर पे, हर स्टेप पर आपको इस किस्म के गलत प्रॉमिसेस, गलत वायदे करने वाले लोग, टॉल प्रॉमिसेस करने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देर इज़ नो डर्थ ऑफ प्रॉमिस विच रिमेन अनफुलफिल्ड।
देयर इज स्कार्सिटी ऑफ पीपल प्रॉमिसिंग थिंग्स फॉर बेटरमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया, स्कार्सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे, ठीक है, तो ये तो ड्रॉप हो गया। पीपल मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस विच आर ऑफन फुलफिल्ड, ऑफन फुलफिल्ड, आई डोंट नो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं यहाँ पर करेक्ट किया गया है, इसको मैं थोड़ा कंसिडर करूँगी, पार्शियली इसको भी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद में पहले डी पढ़ लेते हैं। प्रोमिसेस मेड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, बिल्कुल नहीं, जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते। तो अब बच्चों बताओ, इस आंसर बैंक के अनुसार इसका आंसर है देयर इज़ नो डर्थ ऑफ प्रोमिसेस विच रिमेन अनफुलफिल्ड। अब ऐसे देखा जाए तो हम प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम प्रोमिसेस करने वालों की नहीं, तो कोई कमी नहीं है ऐसे प्रोमिसेस की जो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, सच है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा नंबर हम दे सकते हैं। पीपल मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस विच आर ऑफन फुलफिल्ड, अब लोग बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं जो फुलफिल की जाती हैं। अब तो यहाँ कंफ्यूज हो गए, ए और सी दोनों करेक्ट लग रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाने के बाद। तो लेट अस एनालाइज फ्यू मोर थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन। अब वो बात कर रही हैं, एक्चुअली उनका सरकास्टिक कमेंट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या किसी और पर नहीं है, या किसी भी XYZ पर जो एक्सप्लॉइट करता है ऐसे लोगों को, उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ऐसे प्रोमिसेस, जैसे मैंने उसको एक तसल्ली, एक होप दे दिया, तो मेरा मकसद तो एक्सप्लॉइट करना नहीं था, मैंने तो बस उसको यही बोला कि स्कूल जाओ, लेकिन मैं ये भूल गई कि मेरे बोले गए सेंटेंस से वो बच्चा होपफुल हो जाएगा और वो उसको उम्मीद आने लगेगी कि क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ। तो वहाँ पर तो हम किसके साथ ज़्यादा जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए के साथ, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। तो सी क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया, ये पार्शियली करेक्ट है और ये पूरी तरह करेक्ट है, समझ में आ गया बच्चों। सो देयर आर पीपल, नो डाउट, कुछ लोग वाकई में प्रोमिसेस करते हैं धोखा देने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, और कुछ लोग अनइंटेंशनली, अनीस जैसे सोशल वर्कर, ऑथर्स, जिनका कोई मकसद नहीं था प्रॉमिस करना या कुछ ऐसा करना, वो तो सिर्फ उन्होंने एक बात कही थी और उसको, उस बच्चे को उम्मीद आ गई, ठीक है। फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज़ एविडेंट दैट द ऑथर हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ, अब इस चैप्टर से ऑथर की बात अगर हम कर लें, यानी इस जंग की बात कर लें, तो उनका एटीट्यूड सिंपैथी का है, एम्पैथी का है, अपाथी का है या बिविल्डरमेंट का है, तो एकदम विदाउट एनीथिंग इट गोज़। अब बच्चों देखो, इन दोनों में आपको डिफरेंस ज़रूर समझ में आना चाहिए, सिंपैथी और एम्पैथी में। तो खैर अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है, आप इस पर मैं पूरी बात कर चुकी हूँ, चैप्टर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। वेर एवर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ गो एंड सी। सो दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। किस गोल्ड की बात हो रही है, दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट, फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करिएगा, कहाँ से उन्होंने क्या, कौन सी जगह छोड़ी और किस बड़े शहर में वो आ गए। ये 2 सवाल मेरी तरफ से, इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखती हूँ मैं कितने मेरे रेगुलर रीडर्स हैं, रेगुलर वॉच कर रहे हैं जो वीडियोस मेरी, वो इसका आंसर दे दें। विच प्लेस हैव दे लेफ्ट एंड टू विच बिग सिटी दे हैव शिफ्टेड, दे हैव बीन कंपेल्ड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम विच सिटी टू विच, सीधी सी बात लिखनी, कहाँ से छोड़कर कहाँ तक आए हैं। ओके, गोल्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, गोल्ड ऑब्वियसली मैंने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बिल्कुल लग्जरी नहीं है, एम्पल वेल्थ भी नहीं है और मिसफॉर्च्यून ऑफ सर्कमस्टांसेस भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और हम उसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। चूज द स्टेटमेंट्स दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैक पिकर्स इन सीमापुरी, नॉट ट्रू, मैं बार बार आपको समझाती हूँ बेटा, इनकरेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, ये सारों पर बहुत ध्यान देना है। अब रैक पिकर्स जो सीमापुरी में हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब सीमापुरी के रैक पिकर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो चिल्ड्रन आर इक्वली इन्वॉल्व इन रैक पिकिंग एज देयर पेरेंट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे आर पार्टनर इन सर्वाइवल विद द रैक पिकर्स, सेटल डाउन इन प्लेस परमानेंटली, वो सेटल हो जाते हैं। कुछ हद तक इसके बारे में बहुत नहीं दिया, तो अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन क्योंकि बच्चों उसमें दिया गया है कि वो दे पिच देयर टेंट जहाँ पर उनको मिल जाता है, लेकिन इस केस में जिन रैक पिकर्स की बात हो रही है वो है जो सीमापुरी में सेटल हो गए हैं। सो ये हम इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपकी तसल्ली के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं पार्शियली। रैक पिकिंग हैज़ अकम्प्लिश्ड इटसेल्फ एज अ स्किल एंड फॉर्म ऑफ आर्ट, आपको लगता है रैक पिकिंग ने एक स्किल का रूप ले लिया एंड इट इज़ बिकम अ फॉर्म ऑफ आर्ट।
एंड रैक पिकर्स लिव इन अनस्टडी शैंटीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ये भी सही है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब देखिए, अब आया कि नॉट ट्रू। अब ये जो रैक पिकर्स है फिलहाल तो सीमापुरी में है और रैक पिकिंग ने एक स्किल का रूप ले लिया है, इट हैज़ बिकम अ फॉर्म ऑफ आर्ट ऑल्सो। तो भाई ये भी तो करेक्ट हुआ। तो आई डोंट नो ये ऑप्शन सी क्यों दिया है, मेरे हिसाब से ये गलत है। बच्चों आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 में गलत हूँ। मैं आई डोंट गो विद दिस, अकॉर्डिंग टू मी बी करेक्ट होना चाहिए। द आंसर इज बी। वाई आई टेल यू। सी, सीमापुरी में वो रह ज़रूर रहे हैं लेकिन इस जगह पर वो परमानेंटली नहीं सेटल हुए हैं। फिलहाल 10-20 सालों से रह भी रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं बता रहा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो उस जगह पर परमानेंटली हो गए कभी कुछ। हालांकि ये सच है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी ऐसा कुछ करती नहीं है, स्पेशली स्लम ड्वेलर्स के लिए, लेकिन परमानेंटली तो नहीं है। अगर वहाँ से खाना पीना बंद हो जाए तो वो तुरंत वहाँ से उठकर कहीं और सेटल हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये क्यों इसको ज़्यादा मैंने बी के साथ में गई, सी के साथ क्यों नहीं हुई, ये भी आपको बता दूँ। रैक पिकिंग हैज़ एक्म्प्लिश्ड इटसेल्फ एज अ स्किल। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो बच्चों तो उसमें बहुत क्लियरली दिखा है कि इट हैज़ बिकम अ प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। तो बन तो गया है, एक कला तो है ही ये, एक स्किल तो है ये तो करेक्ट है। तो इसलिए हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आई होप मेरा इतना डिस्कशन करना आपको समझ में आ रहा होगा। जो फटाफट एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs ले लेते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं, I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes, his dream looms like a mirage amidst the dust of, I'm sure आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत पहचान गए होंगे ये बैंगल मेकर मुकेश की बात हो रही है। और yes, I will learn to drive a car, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ की, हम बात कर रहे हैं मुकेश की फैमिली की, हम बात कर रहे हैं उन 20,000 बच्चों की जिन्हें डिंगी सेल्स और हाई टेम्परेचर्स में काम करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं मुकेश के आंखों में उस चमक की जहां उसका एक सपना है और जब वो अनीस जंग को अपने घर लेकर जाता है उस वक्त, ठीक है। तो मैंने बस शॉर्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि आपने चैप्टर कई बार आई एम श्योर पढ़ा होगा। तो फटाफट क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। The simile dream looms like a mirage amidst the dust of streets indicate that his dream was। तो ये जो simile है dream looms like a mirage, ये क्या इंडिकेट करता है कि उसका सपना, ये एक रियलिटी तो है लेकिन डिस्टेंट है। क्या आपको लगता है रियलिटी है लेकिन डिस्टेंट है कुछ हद तक? तो हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। लॉस्ट इन द सी ऑफ डस्ट, बिल्कुल नहीं, इसको तो ड्रॉप कर देंगे। हैंगिंग इन द डस्ट ईयर, इसको भी ड्रॉप कर देंगे। अब आते हैं हम इल्यूजरी एंड इंडिस्टिंक्ट, ये कुछ हद तक। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो हम इसको एनालाइज करते हैं। जो दो हमने ड्रॉप कर दिया उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहला, ड्रीम लूम्स लाइक मिराज। मिराज क्या होता है? इल्यूजन। हिंदी में मैं बता चुकी हूँ आपको, चैप्टर जब मैंने डिस्कस किया है, मरीचिका कहते हैं इसको। और वो कैसा होता है? इल्यूजनरी होता है, इल्यूजरी होता है, इंडिस्टिंक्ट होता है, क्लियर नहीं होता, एक भ्रम की तरह, एक इल्यूजन की तरह। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये रियलिटी है लेकिन डिस्टेंट। देखो बेटा, सपना किसी का भी रियल वी कैन नॉट से। सपना तो सपना है और वो तब पूरा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लगी होती हैं, हमारा हार्ड वर्क, हमारी डेस्टिनी थोड़ा सा, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। तो nobody knows whether this child who wants to become whatever he wants to be, जो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस पर्टिकुलर लाइन में आप इससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे बहुत क्लियर दिया है कि ये ड्रीम यहाँ पर इंडिस्टिंक्ट भी है और इल्यूजरी भी है। सिर्फ बच्चे के कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता ना, बच्चा तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जो मैं पाना चाहता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। अब आते हैं, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं कार ड्राइव करना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। दिस सेंटेंस हाईलाइट्स मुकेश वॉज। ये जो आंखों में उसकी चमक है या वो जो स्ट्रेट आपकी आंखों में देखता है, दिस शोज हिज कॉन्फिडेंस। ये हाईलाइट करता है
कि मुकेश जो है डिटर्मिन्ड है, कुछ हद तक डिटर्मिन्ड है, बिल्कुल है। फियरलेस है, फियरलेस का यहाँ कुछ ऐसा खास लेना देना तो है नहीं, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, पहले आप ट्रेट एनालाइज करोगे चैप्टर के हिसाब से। वेलिएंट है, इसको भी कोई बहुत ऐसी बहादुरी वाला काम तो नहीं किया है इसने भाई, बस डिटर्मिन्ड ज़रूर है। फियरलेस और वेलिएंट दोनों गया। स्टर्न है, अगेन मैंने कहा ना, स्टर्न जैसी कोई क्वालिटी, स्टबन स्टर्न ऐसा कोई क्वालिटी मुकेश की नहीं दिखाई गई हमें। एम्बिशियस है, ज़रूर है। तो हम सॉरी मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया था, ये नहीं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। होपफुल भी है और एम्बिशियस भी है। तो 1, 3 एंड 5 तो मुझे लगता है हम इन तीनों ट्रेड्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें से नहीं चूज़ करना। हमें ऑप्शन तो यहाँ दिए गए हैं, ये तो क्वालिटी ट्रेड्स बताए, क्वालिटी या ट्रेड्स बताए। तो 1 और 5 विल गो विद दिस, ए करेक्ट है। 2 एंड 4 हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। 3 एंड 6 में, एक सेकंड बच्चों, 3 एंड 6 में क्यों हम नहीं रख सकते, क्योंकि 3 और 6, 3 तो हमने किया है लेकिन 6 नहीं किया है, तो ये हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, हमें ये भी ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं सी ऑप्शन पे, 2 और 5। 2 को हमने कंसिडर नहीं किया और 5 है, तो ये भी गया। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। 1 और 5 ही एक ऐसा है जिस तीनों को हमने कंसिडर किया है, तो ये करेक्ट हो गया। अगर यहाँ होता 1, 3 एंड 5 ऑप्शन, तो वो भी करेक्ट होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, विद रेफरेंस टू नॉट ट्रू। इस नॉट ट्रू को तो बच्चों में एडवाइस दूंगी आपको, आप पहले ही हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया करिए क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं। सॉरी, सो जस्ट वेट। हाँ, कौन सा ट्रू नहीं है? चिल्ड्रन वर्क इन बैडली लिट एंड पुअरली वेंटिलेटेड फर्नेसेस, करेक्ट है, ये करेक्ट है बच्चों, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। मतलब ये करेक्ट है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही नहीं है। द चिल्ड्रन आर अनअवेयर दैट इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ टू वर्क इन द फर्नेसेस। बच्चे अनअवेयर हैं, उन्हें नहीं मालूम, वो जो 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि लॉ, कानून उन्हें ये अधिकार देता है कि उनसे कोई ऐसा काम नहीं करा सकता। वाकई में बच्चे अनअवेयर हैं। चिल्ड्रन टॉयल इन दी फर्नेसेस फॉर आवर्स विच इफेक्ट्स देयर आई साइट। बच्चे घंटों काम करके अपनी आई साइट को, अपनी नज़रों को कमज़ोर करते हैं फर्नेसेस के पास काम करके, फर्नेसेस में काम करके। फिरोज़ाबाद हैज़ इमर्ज्ड एज ए नेसेंट प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिरोज़ाबाद बरसों से जाना जा रहा है एज इट इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो ये बिल्कुल नया नहीं है, बिल्कुल अभी अभी नहीं उभरा है, ये बहुत पहले से है। तो ये ट्रू नहीं है। सिर्फ इस वर्ड ने कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। आप में से कितने बच्चे जानते हैं इसकी मीनिंग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर। नहीं तो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर इसका मतलब, नहीं वीडियो के एंड में नहीं बताएंगे आपको, फिर कभी बताएंगे, क्योंकि वीडियो के एंड में बता देंगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने 2-4 जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको ज़रूर प्लीज़ आंसर करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स इंडिकेट्स दैट। अब हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में बैंगल्स बनाने में है। ये क्या इंडिकेट करता है कि बैंगल मेकिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो फिरोज़ाबाद में फ्लरिश करती है? बिल्कुल नहीं। बैंगल मेकिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, ठीक है, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे। फिर भी आपको लगता है तो आप इसको एनालाइज करने के लिए पार्शियली करेक्ट कर सकते हैं, इसको बाद में इस पर एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग। बिल्कुल नहीं, पूरी पॉपुलेशन थोड़ी इन्वॉल्व है। उसके बाद आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिरोज़ाबाद इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग इन बैंगल मेकिंग। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ हद तक मान सकते हैं इसको, चलो पार्शियली करेक्ट है। बैंगल मेकिंग इज़ द मोस्ट लव्ड ऑक्यूपेशन। बिल्कुल नहीं, मोस्ट लव तो हरगिज़ नहीं है। अब जब ए, बी और डी ड्रॉप हो गया तो वी आर लेफ्ट विद ओनली सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक,
वैसे ही सेकंड वाला नहीं लेते हैं बच्चों, कोई ऐसा लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये है, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट RTC विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। वैसे तो 4-5 है, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। सो देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट होम साहेब। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? खुशवंत सिंह, सैलमा, एनीस, कमला दास। दिस इज विदाउट एनी डाउट अनीश। हु आर ही एंड दे इन दी अबव लाइन्स? ही और दे कौन है? ही यहाँ पर है, कौन है बताइए? ही साहेब। और दे कौन है? दे कहाँ पर है? दे लेफ्ट। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है बच्चों, मुझे बताना ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में। ओके, सो दे आर फैमिली मेम्बर्स ऑफ साहेब, यानी साहेब और उसके परिवार के लोग। वेयर डिड स्टॉर्म्स हिट एंड स्वीप फील्ड्स एंड होम्स? कहाँ पर स्टॉर्म्स ने कहाँ हिट किया और उनके खेत और खलिहान और घर सब बह गए? ढाका, सीमापुरी, फिरोज़ाबाद, लाहौर। तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है ढाका। हु डू दे, सॉरी, व्हाट डू दे नाउ डू? क्या करते हैं अब ये लोग जो कभी रहा करते थे ढाका में? बैंगल मेकिंग करते हैं, सी डाइविंग करते हैं, रैक पिकिंग करते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका भी ऑप्शन बहुत ही इजी है। तो कई बार आप देखिए आंसर्स इजी हैं, ठीक है। लेकिन तो ये था बच्चों हमारा ये चैप्टर। आप देख सकते हैं करने के लिए तो बहुत कुछ है डिस्कस, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर मैं इनको रख रही हूँ आप, ताकि उनको देख सकें, पढ़ सकें, पॉज करके और आंसर कर सकें। बट मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, इसलिए मैं इतना ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि द लास्ट लेसन, उसको हम ले लेंगे और उसके बाद हम द एनिमी करेंगे। क्योंकि टर्म 1 को दिमाग में रख के मैंने ये वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पहले कवर अप करना चाहिए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड क्लास 12th प्लीज़ डू वॉच क्रिएटिव राइटिंग वाला जो मैंने नोटिस और आज या कल में मैं आपको लेटर पर भी अपलोड कर दूंगी वीडियो, उसको ज़रूर देखिए। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, डोंट फॉरगेट टू कमेंट।